Hello everyone. In today's lecture, we will take up one of the important topics under the investment decision. As you are aware, in any company, there are three main functions which are being carried for a successful business management. The first we have discussed, that was the financing decision. And second, we are supposed to take up, that is investment decision. In financing, the fund was supposed to be generated from the market and balance was supposed to be made so that we can have the optimum capital structure. Now the theory is that the fund is being generated. As a manager, you are supposed to make the investment of those funds. And when we try to have a survey over the investment opportunities, there are n number of opportunities where the investment could be done. As we have discussed in the previous lectures also, investment could be done in three forms. The physical investment, non-transferable investment and marketable investment. Physical investment means that we are trying to invest in the fixed assets which can be physically seen: land, building, tools, equipment, furniture, diamond, gold, platinum. These can be the various investment which we can do in the physical form or physical property. Then we can also go for investment in those instruments, those we can say as the products which cannot be transferred, that we say as non-transferable, like opening a bank account, having a saving account in a bank, recurring account in a bank, fixed deposit account in a bank, deposit with post office, opening a PPF account, public provident fund, investing in NSC, National Savings Certificate, Indra Vikas Patra or Kisan Vikas Patra. All these can be said as those investments where within a time period you are going to get some benefit, but that investment cannot be transferred, it can only be closed in your name. And thirdly, we are talking about those investment instruments which are easily marketable in the market, like shares. And when you try to have the screening of these three opportunities, physical, non-transferable or marketable, then if you try to go for investment in any alternate, under that alternate there are thousands and lakhs of investment opportunities. मतलब जैसे कि अगर हम कहें कि हमको लैंड में इन्वेस्ट करना है, तो लैंड मीन्स पूरा ब्रह्मांड. Where you want to go for the investment in land? Home country or foreign country? That means there is no limit for having the investment in physical. And when we go for non-transferable, you say that I want to open a bank account. हमको एक बैंक अकाउंट खोलना है, तो भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि किस बैंक? Because we are having public sector, private sector, and foreign banks. Even we are having certain number of cooperative banks, regional rural banks. मतलब बैंक की परिभाषा तो उस समय चेंज हो चुकी है. वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर आ जाते हैं. और अगर बैंक में भी सोचा तो बैंक में कहाँ पे इन्वेस्ट करें? सेविंग में, एफडी में, रिकरिंग में, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर द इन्वेस्टमेंट. And if you want to go for a marketable like share, which share?
home country share, foreign country share, if home country also, in which company, and if in which company, then which form of share of a single company only, because single company make the issue of different types of shares in the market. That means whatever the alternative that you are thinking, there are more choices in the market, and when there are more choices in the market, automatically there will be involvement of decision making. That is why it has been said as decision making, investment decision. Anything that you are trying to do for the future, कोई भी चीज अगर आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और जहां पर नंबर ऑफ ऑल्टरनेट्स ज्यादा है तो कंफ्यूजन आता है, एंड टू ओवरकम दैट कंफ्यूजन वी गो फॉर डिसीजन. सो कैपिटल बजटिंग टॉपिक दैट वी आर ट्राइंग टू टेक अप टुडे, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन मेकिंग द डिसीजन दैट वेयर द इन्वेस्टमेंट कुड बी डन, in which project the company should go for the investment, what are the various opportunities in the market, कि market में कौन कौन से projects available हैं जहां पर company investment कर सकती है. That means it is purely planning of capital expenditure. अगर एक लाइन में एक दो तीन वर्ड में capital budgeting को बताएं, it is a process of planning capital expenditure, कि हम लोग को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसकी प्लानिंग करनी है. द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग, बजटिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड बजट, एंड बजट मीन्स द एक्टिविटी दैट वी आर सपोज टू टेक अप इन फ्यूचर, कि भविष्य में होने वाली एक्टिविटी को पहले से ही हम जब प्लान करते हैं तो उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को हम लोग एक शीट ऑफ पेपर पे निकालते हैं. द कॉस्ट दैट इनकर, दैट वी फोरकास्ट, दैट वी प्रपोज कैन बी सेड एज अ बजट, राइट. तो एंड हियर द बजट हैज टू बी प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल. कैपिटल हियर मींस लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. दैट मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी कंसीडर्ड इन कैपिटल बजटिंग, बट दे विल कम अलोंग विद लॉन्ग टर्म. So capital budgeting will be the topic which will help us in discussing that where the long term investment has to be done, in what form the investment has to be done, and when the long term investment has to be done or is being done, automatically there will be requirement of working capital. That means capital expenditure will bring the working capital which will help the company to perform, run. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब प्लानिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगी, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेजिंग ऑफ लैंड, परचेजिंग ऑफ मशीन, प्लांट, फिक्सेशन ऑफ मशीन, फर्नीचर एंड बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट वी कैन से एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव डन, और वी कैन से एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट व्हेन अब कंपनी एस्टैब्लिश कर रही है, प्रोजेक्ट हमारा एस्टैब्लिश कर गया है, तो ऑटोमेटिकली हमको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए एंड अदर एक्सपेंसेस चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू रन और वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट और वी आर एबल टू एग्जीक्यूट आवर प्रोजेक्ट. सो ऑल दिस प्लानिंग प्रोसेस हैज टू बी डन इन द कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग के अंदर देयर विल बी नंबर ऑफ टेक्निक्स, देयर विल बी नंबर ऑफ टेक्निक्स which will help us in evaluating the performance of the various alternatives that we have. The question is that as there are more choices of investment, so we have to choose the best out of the various alternatives, out of the various choices, so that we are able to enhance the wealth of our shareholder. हर कंपनी का एक ही मकसद होता है कि अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करना, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. सो द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू डू, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन फाइनेंसिंग कैन बी रिकवर्ड, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कैन बी पेड, and the remaining amount is going to give the maximum benefit to the
shareholder who are the owners. So we also say capital investment is going to help us in enhancing the wealth of the shareholder by selecting the best alternates or selecting the best projects which are available in the market. जब हम कहते हैं कि बेस्ट ऑल्टरनेट को हमको सेलेक्ट करना है, तो क्वेश्चन आता है हाउ टू गेट द आंसर दैट दिस इज द बेस्ट. So best can be known by comparing the result, or we can say by comparing the return on the two projects. The way means suppose we are having four projects. Now out of the four we have to take up the one which will be the best, and the best will be categorized on the basis of return. But my suggestion is that our decision should not be purely or solely based on return. When a project is providing or proposing to give the maximum benefit in terms of return, automatically the risk will also be involved. So whether as a project manager you are in position or in capacity to bear the higher amount of risk, higher return, higher risk, lower return, lower risk. इसका मतलब ये हो गया किसी भी प्रोजेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो रिटर्न और रिस्क दोनों ही बेसिस पर हमको सेलेक्ट करना होगा. दूसरी चीज कि that when we try to take up any alternate, तो what are the various cost and revenue. कि अगर कोई प्रोजेक्ट को हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट और कौन कौन से रेवेन्यू लगते हैं. तो नटशल में अगर बात करें तो सिर्फ 5 है. कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर रेवेन्यू हमारे पास जो आया, थर्ड डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया जो हमारे पास आया, फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी द रेसिडुअल वैल्यू. मतलब कि प्रोजेक्ट को पहले हमने इन्वेस्ट किया, कैपिटल कॉस्ट हो गई. प्रोजेक्ट को हमने रन किया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई. प्रोजेक्ट को रन करने से हमारी सेल हुई, उससे रेवेन्यू हो गया. जो एसेट हमारे पास थे उन पर डेप्रिसिएशन लगा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास. और थर्डली जब प्रोजेक्ट हमारा एंड हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, then we are able to get some residual value. So cost can be capital cost and operating cost and revenue, and we can say the benefit can be in terms of revenue, depreciation and residual. All these 5 they comprise of the cost and the benefit for any proposal. लेकिन यहाँ पर अभी मैंने एक बात कही कि life of a project. Who will decide what is the life of the project? Either the money for which we have taken, the duration of the money that we have taken, that will decide about the life or any other decision. In my opinion, the life of any proposal or project is going to depend upon 3 aspects. I am talking about those projects which are continuous. I am not talking about those projects which are divisible or which are non-continuous. मतलब कि ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ, ये लेक्चर मेरा 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, तो 1 घंटा आवर हमारा एंड हो गया. But tomorrow again I will take the lecture. There will be a fresh project for me. तो अगर कोई ongoing प्रोजेक्ट है, कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है, या फिर जो प्रोजेक्ट कभी अंत नहीं होता है, उसकी लाइफ कैसे डिसाइड करेंगे? पहला, चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी. मतलब जो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो जाए. दूसरी टेक्नोलॉजी को लेकर आना है तो ऑटोमेटिकली इस टेक्नोलॉजी की लाइफ खत्म हो गई. दूसरा, जो फिजिकल एसेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेटेरियोरेट हो जाए, मतलब बैड हो जाए. द फिजिकल एसेट्स दैट वी आर हैविंग, उनकी लाइफ खत्म हो जाए. और तीसरा, जो डिमांड प्रोडक्ट की मार्केट में है वो डिमांड डिक्रीज हो जाए.
there is a fall or decline in the demand of the output in which we are dealing. So these three will decide that what will be the life of a project or alternate or a proposal if that project is ongoing, जो कभी न खत्म होने वाला है, right? So generally the life of the project will always depend upon the technology obsolescence, the physical deterioration, कि physical asset जो हमारी है वो बेकार हो रही हो, या मार्केट में लॉ the demand of the product that decreases. Now, that means in capital budgeting, जैसे कि हम कहें कि अगर एक पर्सन को हमको इवैल्यूएट करना है, एक पर्सन को इवैल्यूएट करना है that among the lot who is the best, इतने सारे लोग बैठे हैं, who is the best, तो I will fix some criteria. I will fix some criteria on the basis of which I will try to evaluate each and every person. And the person who is going to fit in my criteria, that person will be the best for me. I am not saying all are bad, all are good, but the person who is going to suit to my criteria will be the best. दूसरी चीज, कैपिटल बजटिंग जो होता है, basically it is very specific oriented. Specific oriented means it is situational based. It is particular based. Means I think this project is good for me in this situation. That same project may not be good in same time frame for you. Reason being, I am very rich. मैं बहुत अमीर हूँ. I can take high risk. You are not that rich. You cannot take high risk. तो ऑटोमेटिकली एक ही समय में अच्छा प्रोजेक्ट हम तो ले लेंगे, आप नहीं ले पाएंगे. तो what I am trying to say that the cost on the project changes from firm to firm, person to person, situation to situation. Benefit on the project changes from firm to firm, person to person, situation to situation. पर्टिकुलर है, मतलब एक हमने जो ढांचा बनाया हुआ है, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसी टाइम फ्रेम में या उसी स्ट्रक्चर के अंदर ये बेस्ट है. लेकिन स्ट्रक्चर का अगर एक भी ऑल्टरनेट या एक भी पॉइंट हमारा खिसका, दिस इज नॉट बेस्ट. So that is why I am saying that a project can be good for me, but it may not be good for you, because our objectives are going to change. And when we go for the investment, what happens? When we go for the investment, what the investor want? Our investment should be safe. Our liquidity has to be maintained, and return should be more than the cost. These are the three basic criteria on which any investor is going to go for accepting the project itself. और जैसा भी मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स होती हैं. क्यों? जैसे एक पर्सन को इवैल्यूएट करने के लिए हम कहें कि पर्सन की पर्सनैलिटी को देखिए, उसके बैकग्राउंड को देखिए, उसके एक्सपीरियंस को देखिए, उसके एजुकेशन को देखिए. मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द डिसीजन दैट दिस पर्सन इज गुड एंड बेस्ट फॉर माय प्रोजेक्ट. इन द सेम वे a project is also evaluated from different angles, from the return angle, from the risk angle, from the society point of view angle, from the company policy point of view angle, from the government point of view angle, from the market point of view angle, from the world point of view angle. मतलब कई एंगल्स को हमको चेक करना पड़ता है, और हर एंगल में हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट निकले, then only we can say this is the best project for me. You know that while we are trying to take up any capital budgeting decision, then what are the difficulties or problems that can be faced by a manager? क्योंकि जब अगर हम कोई फ्यूचर एक्टिविटी ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नो प्रोजेक्ट इज रिड ऑफ एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी. प्रॉब्लम तो होंगी ही. तो एज अ मैनेजर, बिफोर इन हैंड टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट, वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट कैन बी द वेरियस problem or difficulties that we can face. So problem and difficulties, they will vary from project to project, but in general सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैपिटल बजटिंग में आती है, that is future uncertainty.
because we are trying to take the decision regarding the future, और future हमारा uncertain है. What we are doing on the basis of past experiences, present circumstances, we are trying to forecast regarding the future, but we are never sure that the same may happen. So the possibility of deviation always exists, and we should be always ready to accept the deviation in the decision that may take place in near future. मतलब हल्का सा हमको मार्जिन रखना पड़ेगा हर एक में, कि अगर हम कॉस्ट लगा रहे हैं तो उसमें भी मार्जिन रहे, जो बेनिफिट सोच रहे हैं उसमें भी मार्जिन रहे, so that the margin is going to adjust the uncertainties that we may face in near future. Secondly, the second problem is time factor. Mean investment in present and return in future. And as we have discussed earlier, time value of money, the value of money never remains the same. With the passage of time, the money value depreciates, discounting factor लग जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करें या प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कंपेयर करें, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर द बेस शुड बी कॉमन. प्रेजेंट को प्रेजेंट से, फ्यूचर को फ्यूचर से. प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ऑटोमेटिकली देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स. बैंक रेट चेंज होगा, वैल्यू ऑफ मनी चेंज होंगी, ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे, इन्फ्लेशन चेंज होगा. तो दिस टाइम एलिमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द मैनेजर. एंड थर्ड प्रॉब्लम इज मेजरमेंट प्रॉब्लम. अगेन आई एम सेइंग दैट हाउ टू मेजर. क्वांटिटी तो मेजर हो जाती है, क्वालिटी को कैसे मेजर करें. द प्रोजेक्ट इज रनिंग गुड. आज हमने कहा गुड, बट वी कैन नॉट से इट विल रिमेन एज गुड फॉर एवर. दिस प्रोजेक्ट हैज परफॉर्म द अल्टीमेट, बट व्हाट इज दैट अल्टीमेट? दैट मीन्स ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनहांसमेंट. प्रोडक्टिविटी को बढ़ने के हमेशा स्कोप रहता है. सो वॉट एवर दैट वी हैव अचीव्ड, क्या अगले साल उससे ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करेंगे तो पिछले साल क्या किया था? That means the measurement problem is going to come. So these are the three main problems which are generally faced by the finance manager with respect to any capital budgeting decision. First I said as future uncertainties, second I said as time, and third I said as measurement problem. Now, as I said just now, that capital budgeting is basically means if the question arises, what are the various types and forms of capital budgeting? For a project, for a particular project in a specific situation, for a particular project in a specific situation, there can be number of types and forms of capital budgeting decision. मतलब एक ही प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो सकते हैं. मतलब अगर यहां पर 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं और 50 के सामने हम एक प्रोजेक्ट रखें, तो ऑटोमेटिकली द डिसीजन इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज एवरी पर्सन इज गोइंग टू हैव देयर ओन पैरामीटर्स, own objective, own policies, and on that policy, on that parameter, the project will be evaluated. That is why I am saying a decision making can be of number of types and number of forms for a particular or a specific situation. एक ही सिचुएशन में चेंज हो जाएगा. इस कमरे में डिसीजन लिए है, नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा. इस पर्सन के लिए सही है, इसके लिए सही नहीं है. 10 के लिए सही है, 50 के लिए सही नहीं है. राइट? एंड और आप देखें भी कि बैंक रेट भी बैंक टू बैंक चेंज होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होता है. मतलब बैंक देखेगा प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, लाइफ कम है, कम रेट, ज्यादा लाइफ है, ज्यादा रिस्क हो गया, ज्यादा रेट लग गया. दैट मीन्स अगर आप किसी भी एक प्रोजेक्ट का कैपिटल स्ट्रक्चर देखें और दूसरे ही सेम प्रोजेक्ट का आप देखें, देयर विल बी वेरिएशन, देयर विल बी वेरिएशन. सो we are trying to say a project is good on certain conditions,
on certain base, certain parameters, certain situation. उन सिचुएशन और बेस पैरामीटर्स में ये डिसीजन हमारा है. बट इफ देयर विल बी एनी चेंज इन एनी पैरामीटर और फैक्टर और बेस और सिचुएशन, द डिसीजन इज गोइंग टू चेंज. नथिंग इज फिक्स्ड. नाउ व्हेन वी से दैट देयर आर n number of types of capital budgeting decision, then what can be the various forms of capital budgeting? So what I have done, I have tried to divide these forms or types into two forms, into two types. From firm point of view, from the firm point of view, and secondly I can say that from the situation point of view. Decision, the situation point of view. जब फर्म की बात करते हैं तो फर्म में दो तरह के हो सकते हैं, न्यू फर्म और एग्जिस्टिंग फर्म. अगर हम एक नई फर्म के बारे में बात करें, दैट डिसीजन मेकिंग मींस कैपिटल बजटिंग डिसीजन फॉर अ न्यू फर्म. तो न्यू फर्म में कोई भी काम किया सबके लिए डिसीजन है. मतलब लैंड कौन सी, डिसीजन. बिल्डिंग कौन सा, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्डिंग कितने माले की बनेगी, डिसीजन. प्लांट कौन सा, कहां पे लगेगा, लेआउट क्या. दैट मींस every activity that will be carried out in a new firm is going to involve decision. So capital budgeting decision for a new firm is going to involve n number of decisions for all the activities which will be carried, because every activity will be the fresh activity. Secondly, if I am saying the firm is existing, पहले से ही firm perform कर रही है, since number of years, number of decades, कुछ भी आप कह सकते हैं. Now, capital budgeting decision for an existing firm. Existing firm के लिए क्या होगा, expansion होगा, modernization हो सकता है, diversification हो सकता है, upgradation हो सकता है. Mean या तो हम उसको expand कर रहे हो, या modify कर रहे हो, या diversify कर रहे हो, या upgrade कर रहे हो. These can be the various decisions that we can involve for existing firm, right? और दूसरी बात, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पॉइंट ऑफ मतलब ये हमने कहा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम फर्म को देखते हुए कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेंगे तो नई फर्म या एक्जिस्टिंग फर्म. और दूसरा हमने कहा कि दैट वी आर ट्राइंग टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन. सिचुएशन हम लोग दो लेते हैं. पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन मतलब कि अगर हमारे सामने एक से ज्यादा 2 या 3 प्रोजेक्ट हैं या 4 प्रोजेक्ट हैं और तीनों एक ही तरह के हैं, चारों एक ही तरह के हैं, तो उन तीनों में से या चारों में से जो बेस्ट हमने ले लिया, बाकी अपने आप खत्म हो गए. द चॉइस ऑफ द रेस्ट इज गोइंग टू कम टू एन एंड एज वी हैव टेकन अप एनी वन आउट ऑफ देम. जैसे कि हमने कहा कि एडवर्टाइजिंग कंपनी के बारे में सिलेक्शन करना है, तो हमारे सामने 5 कंपनी है, उनमें से एक लिया तो बाकी अपने आप एंड हो गए. और दूसरा इसमें आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन. दैट मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, नॉट सेम. पहले ने कहा था सेम प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड देन वी गो फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट. राइट? So in this way we can say that there are number of capital budgeting decisions. There are types. The types and forms of capital budgeting decisions, they are infinite. Right? Now, as I said, that for evaluating any person, there will be number of angles, number of questions that are going to satisfy for the saying the person to be a best. In the same way, the decision with respect to capital budgeting is going to make the involvement of number of techniques. मतलब एक प्रोजेक्ट को हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कई एंगल से जब हमको पॉजिटिव खबर आती है तो ही हम कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ट है. लेकिन कौन कौन से फाइनेंशियल टूल्स या टेक्निक्स हम लगाएंगे, दैट वी आर ट्राइंग टू टेक अप. दैट मींस वी कैन से टेक्निक्स of capital budgeting.
वेरी इंपॉर्टेंट, कई चीजों को हम मिक्स करके इसमें लाएंगे, आप देखिएगा, इट विल लुक बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So what we can do, that we can divide extremely into two parts. Here we can say non-discounting, which can also be said as traditional method. Traditional method. And secondly, we can say as discounting. Discounted methods. Right? Or we can say time adjusted. Time adjusted. These will be the two broad division. Non-discounted means जहां पर हमने कैश फ्लोज को या फिर जो अकाउंटिंग आपके फिगर्स हैं उनको डिस्काउंट नहीं किया है. एंड हियर द डिस्काउंटिंग हैज बीन डन, दैट मीन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया गया है, यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया गया. तो पहले इसके अंदर देखते हैं, देयर आर ओनली टू. फर्स्ट विल बी वी कैन से एज पे बैक पीरियड. Payback period, and second will be ARR, accounting rate of return, which can also be called as ROI, return on investment, right? And it can also be called as ROI, ARR, that is average rate of return. Accounting rate of return, average rate of return और ROI, return on investment, they are the same thing. ये दोनों ही टेक्निक जो है हमारी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती. जब हम कहें मीन नाउ वी टॉक अबाउट द ऑल दोस टेक्निक्स व्हिच आर कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब उसमें हम डिस्काउंट लगाएं, डिस्काउंट करने के बाद डिसीजन लिया. तो व्हाट आई हैव डन, दैट आई हैव ट्राइड टू डिवाइड दिस थिंग इनटू थ्री पार्ट्स. कई चीजों को एक साथ लेकर आया. पहला रिटर्न. अंडर दिस all those techniques that we are going to discuss, which will talk about the decision on the basis of return, कि रिटर्न के बेस पर डिसीजन लिया जा रहा है. Here we will talk about those techniques which we can say as some issues, some or we can say special issues will be there, कि इन रिटर्न में कुछ और एड ऑन कर देंगे उनके बेसिस पर. एंड थर्ड, फोर्थली वी कैन से thirdly we can say on the basis of risk. Return, special issues and risk, इन तीनों के तहत हम लोग लेंगे और तीनों ही हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं. Now under the return there will be few. First is net present value. Net present value, also called as NPV. NPV method. This will be terminal value. Terminal value, also known as terminal value, or we can say as modified net present value. Then we can say as profitability index, PI, profitability index, which is also called as BCR, benefit cost ratio. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या इसका दूसरा नाम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं. नेक्स्ट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
जो फेमस टेक्निक्स है हमारी फॉर इवैल्यूएशन, दे आर एनपीवी एंड आईआरआर, द बेस्ट टेक्निक दैट वी कंसीडर फॉर इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम द रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? टर्मिनल वैल्यू एंड एडजस्टमेंट, राइट? एंड हियर आल्सो वी कैन से जो पेबैक पीरियड यहां था उसी का एडवांस वर्जन, पेबैक पीरियड में ड्रॉबैक था, टाइम वैल्यू नहीं एडजस्ट कर रहा था, और यहां पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, यहां पर उसी का जो फ्लॉ था, उसी की जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करके डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ गया। सो दीस विल बी टेक्निक्स व्हिच विल बी कमिंग अंडर रिटर्न स्पेशल इश्यूज। मतलब ये सारी टेक्निक्स प्रोजेक्ट के रिटर्न को बताएंगे डिफरेंट एंगल से। अब इसमें स्पेशल इश्यू में जो हम लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट इज कैपिटल बजटिंग अंडर राशनिंग और कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग मीन्स अगर प्रोजेक्ट हमारा डिवाइजिबल है, नॉन डिवाइजिबल है, तोड़ सकते हैं, बिल्डिंग हमको बनानी है, पूरा पैसा नहीं है, 5 माले की बनानी है, 2 की बना लीजिए, या हमारे सामने इतना पैसा है कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो कौन कौन से लेंगे? कैपिटल राशनिंग, मतलब वो लगेगा एनपीवी आईआरआर पे। जब तक आप ये नहीं निकालेंगे तब तक स्पेशल इश्यूज हमारे नहीं लग सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि रिटर्न को इवैल्यूएट करने के बाद उसमें और चीजें ऐड की जा रही हैं। वी कैन से हायर वर्जन ऑफ दिस टेक्निक। देन वी कैन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना होगा, उसके बाद हम ये निकालेंगे। अगर इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया देन डिसीजन दिस विल नॉट बी प्रॉपर। तो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमको यहां पर। देन thirdly we can say unequal lives। अनइक्वल लाइफ कि मैं आपके सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक की लाइफ 4 साल है, एक की लाइफ 6 साल है। इन दोनों में से एक लेना है, तो दोनों की अनइक्वल लाइफ हो गई, तो उनके एनपीवी को देखेंगे, उनके आईआरआर को देखेंगे, उसमें रिस्क कितना है वो देखेंगे, तो ही डिसीजन लेंगे। हो सकता है आपको लग रहा है कि भाई जो 6 साल वाला है उसमें ज्यादा एनपीवी है, लेकिन 4 साल वाले पे रिस्क कम है कि पहले जल्दी रिकवर कर रहा। तो यहाँ पर जो अनइक्वल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, एंड दैट वुड बी ओनली डन जब ये सारी लग जाएगी, राइट? रिस्क को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, द टेक्निक्स अंडर रिस्क। वन वी कैन से एज कन्वेंशनल, and second we can say as statistical। There can be 2 classifications of techniques under risk conventional। तो conventional में we can say first will be risk adjusted discount rate, RADR, risk एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की जो डिस्काउंट रेट है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। सेकेंड विल बी सीई, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हमने अभी भी कहा कि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। फ्यूचर में हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं 10,000 रुपए का कैश फ्लो आएगा, लेकिन इस 10,000 में हो सकता है कि 6,000 सर्टेन हो और 4,000 में अनसर्टेनिटी हो। तो ये कह रहा है सर्टेनिटी 6,000 को लो, 4,000 को छोड़ दो, राइट, जो सर्टेन है। thirdly sensitivity, SENSETIVITY, sensitivity, sensitive मतलब हर प्रोजेक्ट किसी न किसी
फैक्टर को लेकर सेंसिटिव होता है, तो वो मतलब इसकी दुखती रुख कहां पर है? इसको हम ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये करेंगे तो ये घट जाएगा। और हर पर मतलब इसका समझ लीजिए वीक पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना, सेंसिटिव। मतलब एक को बढ़ाया तो एनपीवी फर्क क्या पड़ा, दूसरे को बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ा, तीसरे को घटाया तो क्या फर्क पड़ा। दैट मींस दिस विल आल्सो बी मेजर्ड ऑन दिस। मतलब ये जो बेस है हमारा, ये हमारा बेस है। स्पेशल इश्यूज इसी पर लगेंगे, रिस्क कन्वेक्शनल हो चाहे क्लासिकल हो लगेंगे रिटर्न पे। और चौथा इसमें आता है सिनेरियो। सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस। सेंसिटिविटी के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो हमारे पिटफॉल्स हैं, वो सिनेरियो में ओवरकम किए जाते हैं। ये तो वन से सेम। स्टैटिस्टिकल, इसमें आता है पहला, स्टैटिस्टिक्स जब भी आती है तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है, चांसेस ऑफ अकरेंस। तो पहला आ गया प्रोबेबिलिटी अप्रोच। प्रोबेबिलिटी अप्रोच, प्रोबेबिलिटी अप्रोच कर लेते हैं, अप्रोच। दूसरा टेक्निकल है, सिमुलेशन, सिमुलेशन अप्रोच। ये भी डिस्कस करेंगे, सिमुलेशन मतलब यहां पर क्या हो गया। एंड थर्डली डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री अप्रोच। डिसीजन ट्री मतलब एक डिसीजन लिया, दूसरा फर्क कर गया, दूसरा लिया, तीसरा फर्क कर गया। तो इस तरह से हम लोग ट्री बनाते हैं कि एक डिसीजन लेने से दूसरे कौन कौन फैक्टर्स पे चेंज आता है, फिर उसको चेंज किया, उसको चेंज करने से कौन कौन फैक्टर पे चेंज आता है। So these will be the various techniques which we have to take up one by one, so that we are able to evaluate that which project out of the alternate is the best. मतलब non-discounting, and these will be the discounting technique itself, and we will take up that too. And here मतलब हमने आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ज्यादातर टेक्निक जो हमारी आती है वो नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग में सिर्फ इतना लेते हैं। बट व्हाट आई डिड कि अगर एक प्रोजेक्ट को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो पहले डिस्काउंटिंग लगा लीजिए, कुछ एडजस्टमेंट्स हो उनको आप एडजस्ट कर लीजिए, फिर रिस्क देख लीजिए, एंड देन यू आर इन पोजीशन टू से दैट दिस प्रोजेक्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। So these techniques that we have to take up one by one, and in the next lecture we will take up the non-discounting techniques, and then discounting techniques that we will take up, which will be divided among risk, special issues, and risk and return. Right? Okay. Thank you.